आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हीरानंदानी भाइयों ने भारत की सबसे बड़ी और सबसे पहली टाउनशिप जो थी हीरानंदानी गार्डन्स वो बनाई, जो कि 250 एकड़ में फैली हुई है और आज वहां पे एक फ्लैट की कीमत 5 करोड़ रुपए है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उन्होंने 250 एकड़ का डेवलपमेंट कैसे किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आए और ऐसे क्या सिंपल आइडियाज उन्होंने लगाए जिससे वो लोखंडवाला जैसे बड़े बिल्डर को पीछे छोड़ के आज 20,000 करोड़ के मालिक हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हीरानंदानी कौन है। हीरानंदानी भाइयों ने 1980 में डेवलपमेंट स्टार्ट की और वो बहुत छोटे लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था। 10 लाख की कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया था और 1985 आते आते लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में अंधेरी में उनकी कुछ बिल्डिंग्स डेवलप हो रही थी, लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड रहते थे। I was building buildings in Lokhandwala complex in Andheri, and every time I completed a nice building, I looked out of the balcony of that building and I was so disappointed with what was around the building. No good roads, no street lights, no water supply. इसी डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए उन्होंने जो है MMRDA से 250 एकड़ की लैंड खरीदी, जो कि मुंबई से 30 किलोमीटर दूर पवे में थी, जहां पे कोई भी लैंड लेना नहीं चाहता था। I didn't tell anybody. I actually lied. I told them I bought 25 acres and 30 acres and stuff like that. I think a lot of my professional colleagues and professionals who advise us thought I was mad. फिर जब उन्होंने वो लैंड बाय कर ली तो अगला सवाल ये था कि 250 एकड़ में डेवलपमेंट करे कैसे। We need to create some style of architecture which belongs to this place, which makes it, gratifying to the residents and yet has some harmony to it. उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो कि नामी गिरामी आर्किटेक्ट है और जिनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, उन्होंने दिया। उन्होंने पूरा जो है डिजाइन किया 250 एकड़ का और आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन दिया उनको। The old style of Mumbai, which all this area is the Gothic style. We did Gothic style. Then we said no, it looks a little bit quite old-fashioned. Then we did some Art Deco. Then we did postmodernist. Then finally, one fine day, I was sitting with Surendra, and we said, hey, why don't we do a classical style? इवन न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चरल पार्ट में उन्होंने बिल्डिंग्स के टॉप जो थे, जहाँ पे वाटर टैंक रहती है, उसको भी सजावट की तरह ऐसे बनाया कि जैसे वो आज चेरी ऑन द टॉप लगती है। I think some people say it's a cake on the top of the buildings. Other people look at it as topis or hats, but actually they are water tanks and lift machine rooms disguised under the topi. And I think, it's like going to a derby and where you wear hats on the top, on the face of beautiful ladies. We have the topis on the top of beautiful buildings. लेकिन पहले ही दिन से इस 250 एकड़ के टाउनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। It looked impossible because you just couldn't even get into the land. It was barren but denuded and quarried. It was, a very tough landscape. And anyone would wonder, why should anyone live here? This was quarry land somewhere on the corner of Powai, which I don't think anybody really noticed. If you ask anybody 30 years ago, they don't remember this part of Powai. ये लोग जो है 100 एकड़ में गार्डन बनाने वाले थे और ये लेवल के गार्डन्स अभी तक किसी ने नहीं बनाए थे। 70s and 80s, everything was in shambles. Nobody really knew how to construct. There was no consultant you could hire. So we had to make our own, guidelines for construction. We had to go refer to Australian standards, Singapore standards, European standards, American standards as a reference and created our own reference. क्योंकि उसका नाम ही था हीरानंदानी गार्डन्स, तो कॉन्सेप्ट ये था कि गार्डन्स रहेंगे और उसके बीच बीच में जो है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे। From day one, we took the name Gardens because we wanted it to be a community, a township within the gardens. The gardens would be the essence के लिए उन्होंने of the सोल्यूशन place. लाया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, जो हम लोग वेस्टेज वाटर रहता है उसी को रिसाइकिल करके फिर से यूज करता है। 1989, when it was not fashionable to talk about sewage treatment, all that came in the late 90s, we did 100% sewage recycling. What I wanted to do in the gardens was so huge, there was no way I would get enough water from the municipality. We treat sewage as a resource since 1989.
आज के डेट में वहाँ पे 200 टैंकर का जो पानी है वो रोज रिसाइकल हो जाता है और फिर से वो गार्डन्स को चला जाता है, जिससे वो गार्डन्स फ्लरिश हो जाते हैं। This is a sewage overflow wall which is letting sewage go to the main sewer lines of BMC. This is generally kept closed and total sewage gets collected here. It is pumped from here for sewage treatment. और वो सारा पानी जो है गार्डन्स में और फ्लशिंग में यूज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किया डेवलपिंग स्कूल्स, गार्डन्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। आज पवई में इतने अच्छे हॉस्पिटल, इतने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो मुंबई में 3000 लोगों के लिए एक बेड रहता है हॉस्पिटल में, वहीं पे हीरानंदानी में 100 लोगों के लिए एक बेड है। लेकिन क्या ये सारा लक की बात है? क्या उनको लकीली इतनी अच्छी ज़मीन मिल गई और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, आज 20,000 करोड़ के मालिक है वो? ऐसा नहीं है। अगर आप उनका एक इंटरव्यू देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि मैं हर बिल्डिंग जो है वो प्रीवियस बिल्डिंग से अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। What the issue really is what was I yesterday? What kind of buildings did I make yesterday? Am I making better buildings today than what I made yesterday? So I continue to compete not with XYZ somebody else but myself. 20,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बाद में भी उनका जो घर है वो टॉप 6 मोस्ट एक्सपेंसिव होम्स में नहीं आता। अगर आपको ये जानना है कि 6 सबसे महंगे घर किसके हैं इंडिया में, तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें।